स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर से रिवीजन शुरू करेंगे। दैट इज फिजिकल एजुकेशन, कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और मैं इसमें शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, ये क्वेश्चन जो है आपके सामने पूछने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़ चढ़ के इसमें इंटरेस्ट लेंगे और ये आपकी रिवीजन भी होते रहेगी और आप इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन पर चैप्टर पूछे जाएंगे, जो न्यू पैटर्न आया है, आपको 20 क्वेश्चंस होंगे इन ऑल, और पर चैप्टर से 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्ड फिजिकल हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड फिजिक विच मीन्स डैश, विच मीन्स बॉडी। Who said physical education is that phase of education that deals with big muscular activities and their relative responses? I am asking here the name of the writer who has given this definition, and the right answer is J.B. Nash. Again, question comes, who said physical education is the sum of those experiences which come to an individual through moments? The choices are J.B. Nash, Delbert, Overtufer, Cassidy, none of the above. The answer is B, Delbert, Overtufer. Question number 4 is, according to Cassidy, physical education is the sum of changes in an individual caused by experiences centering motor activities. Is it true or false? It is true. Who said physical education is the sum of man's physical activities selected as a kind and conducted as to outcome? And the answer is C.L. Browner. The main aim of physical education is all-round development of, answer is personality. All-round development of personality includes physical, mental, social, emotional and moral aspects. Is it true or false? It is true. The aim of physical education is many and the objectives are one. Listen carefully the question. The aim of physical education are many and objectives are one. Is it true or false? It is false. Name some objectives of physical education. There are many objectives like physical development, emotional development, recreational development, mental development, social development, emotional development, and you know all these. Physical development underlines A, muscular development, physical strength oblique mental strength, endurance and resistance to diseases, all of the above. So answer is all of the above. Motor development means better neuromuscular coordination. मोटर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? बेटर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन. इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू. मेंटल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज आल्सो नोन एज कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव. द qualities like cooperation, courtesy, fair play, sportsmanship, tolerance and sympathy comes through dash dash development. It comes through social development. Emotion include love and hate, jealousness oblique competition, pleasure, distress, anger, or all of the above. The answer is all of the above. The emotions are vital for every individual, but excess of these are always bad. इमोशन जो है सबके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन किसी भी एक चीज़ का एक्सेस में होना जो है वो गलत है. तो ये ट्रू बात है या फॉल्स है? तो इट इज़ ट्रू. इमोशनल डेवलपमेंट मीन्स एक्सेप्टिंग विक्ट्री और डिफीट and obeying rules oblique regulations of games. Is it true or false? It is true. So dear students, ये चैप्टर 1 के
मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव जो है खुद फ्रेम किए हैं, आप भी अपनी लेवल पे कुछ क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। ये मोटी मोटी हमने शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने कोशिश की है कि आपकी रिवीजन हो जाए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आज की भी मैं वीडियो देख रहा था, एक बच्चे ने भी ये वीडियो जो है व्यू नहीं की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है इंटरेस्ट धीरे धीरे लूज होता जा रहा है। शायद आप में से कुछ लोगों के दिमाग में मास प्रमोशन आ रही होगी, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आगे आपका कैरियर है, ये आपकी बेस है, और 11th-12th में अगर आपकी बेस अच्छी होगी तो आगे कल आप एंट्रेंस के लिए जाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस वक्त टीचर जो है बहुत जी जान से कोशिश कर रहे हैं, कुछ बच्चे भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो अभी व्यू नहीं कर रहे हैं, वो उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो आज की वीडियो के थ्रू मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज से हमने रिवीजन शुरू कर दी, आइए इसमें बढ़ चढ़ के रिस्पॉन्स दीजिए, इंटरेस्ट लीजिए, ताकि टीचर को भी और ज़्यादा इंटरेस्ट बने। मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इसमें इंटरेस्ट लें, और जब आप भी इंटरेस्ट लेंगे तो हमें एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन मिलती है कि हमारा लेसन सक्सेसफुल हो गया और हम और मेहनत उसमें करते हैं। जब हम देखते हैं कि हमारी वीडियो को किसी ने व्यू ही नहीं किया, किसी ने क्रॉस क्वेश्चनिंग ही नहीं की, किसी ने कोई पूछा ही नहीं,